آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ جو ظلم کر رہے ہیں ظالم ان کو بھی دیکھ رہا ہے، کسی مسلمان کو نہیں، کسی بھی انسان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ کسی بھی جانور کو تم بغیر کسی سبب کے ظلم کر کے مارو گے، خدا اس کو بھی لکھ رہا ہے، اس کا بھی جزا ہے، اس کا بھی سزا ہے آخرت میں۔ ایسے ہی اور بیانات کے لیے ڈاکٹر مولانا شریف حسینی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور اللہ ظلم کو پسند بھی نہیں فرماتا۔ یہ دنیا جزا اور سزا کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا بس کام کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں اعمال کرو، کام کرو، اس کا بدلہ مرنے کے بعد جزا اور سزا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن انسانوں کو اس کا بدلہ عطا فرمانے والے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ بھی ہے کہ مسلسل دنیا میں کمزوروں کے اوپر، مظلوموں کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر، غزہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ ان لوگوں کے اوپر رحم نہیں فرما رہے؟ کیا ان لوگوں کے اوپر اللہ کا کرم نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کے اوپر اللہ کا رحم نہیں ہے؟ انسان کے دل میں یہ سوچ اور یہ خیال آ سکتا ہے۔ کربلا کے میدان میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے اوپر ظلم ہوا۔ ابھی تو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کمزوروں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور کسی جگہ پر مسلمان ہی نہیں، انسان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ اس کو بھی لکھ رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مسلمان پہ تم ظلم کرو، مسلمان کو مارو، تمہیں سزا دی جائے گی آخرت میں، یہ بات نہیں۔ کسی جانور کو بھی، موذی جانور نہیں، تمہیں تکلیف نہیں دینے والا جانور، جس جانور سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں، سانپ، بچھو وغیرہ ایسے جانور چھوڑو، یہ تو انسانوں کو تکلیف دینے والے، جب تمہیں تکلیف دینے کے لیے آ رہے ہیں یہ جانور، تو اس کو دیکھو، بوسا دو، پیار کرو، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ان کو مارو، یہ لوگوں کو تکلیف دینے والے جانور۔ کسی بھی جانور کو تم بغیر کسی سبب کے ظلم کر کے مارو گے، خدا اس کو بھی لکھ رہا ہے، اس کا بھی جزا ہے، اس کا بھی سزا ہے آخرت میں، اس کا بدلہ اللہ پاک دینے والے ہیں۔ اللہ پاک پورا دیکھ رہے ہیں، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہاں، مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، مشرکوں کا، اور جو خدا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ماننے والے ہیں خدا کی، ہم خدا کی نہیں مان، خدا کہاں ہے؟ گاڈ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ جو لوگ کہہ رہے نا، ان کو پیدا کرنے والا بھی وہی خدا ہے۔ یہ جو زبان درازی کر رہے ہیں، ان کے زبان میں جو آئے وہ بک رہے ہیں، ان کے زبانوں میں بولنے کی طاقت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ جو دماغ سے سوچ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان کو دل اور دماغ دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ کسی مسلمان کو نہیں، کسی بھی انسان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کا بدلہ دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد آخرت میں ان کو عطا فرمائے۔ آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ان کو بھی دیکھ رہا ہے، جو ظلم کر رہے ہیں ظالم ان کو بھی دیکھ رہا ہے، مگر ان کو چھوٹ دے رکھا ہے۔ کربلا کے میدان میں جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کرنے والوں کو اللہ چھوڑ دیا تھا، نبی کے نواسے ہیں، اگر نبی کے نواسے چاہتے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم،
2 बार नहीं 3 बार अल्लाह की कसम मस्जिद में बैठ के कहता हूँ, नबी का नवासा अगर चाहता अल्लाह से हाथ उठा के कहता, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह को इतनी मोहब्बत है, मोहब्बत थी, मोहब्बत रहेगी। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस तरीके की मदद चाहिए थी उस तरीके की मदद अल्लाह तबारक व तआला उनको दे सकता था। मगर इम्तिहान की जगह है ना दुनिया, इम्तिहान के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद इस इम्तिहान को एक्सेप्ट करके ही करबला के मैदान में आए। अल्लाह तबारक व तआला देख रहा था कि करबला के मैदान में मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के साथ, उनके आल के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके नवासों के साथ, मासूम दूध पीने वाले बच्चों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है करबला के मैदान में। पानी के लिए उनको तड़पाया गया, पानी के लिए इनको तरसाया गया, इनको तरसा तरसा कर तड़पा तड़पा कर मारा गया। ये अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देख रहे थे। आज करबला के मैदान में शहीद होने वाले शुहदा जन्नत के नेमतें खा रहे हैं, अल्लाह की रज़ा मंगे। यजीद और इमाम हुसैन के ऊपर जो जुल्म किया था उन लोगों के ऊपर लानत बरसाते रहेंगे। जो नबी के नवासों के ऊपर जुल्म किए थे वो आखिरत में अल्लाह उनको सजा अता फरमाएंगे। दुनिया में भी उनको सजा मिली थी, मिली है, और उसके बारे में पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिए। करबला के मैदान में जो जालिम थे उन लोगों का हाल क्या हुआ। आज फलस्तीन में भी यही है, जिन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है खुदा देख रहा है, उसकी मर्जी है, वो चाहे दुनिया में सजा दे या आखिरत में सजा दे। सजा की जगह तो दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में तो उन्हें सजा देने वाले, मगर दुनिया में भी उनके ऊपर जिल्लत मुसल्लत फरमाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं, मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू। कुछ नबियों के ज़माने में, कुछ रसूलों के दौर में, रसूलों के ऊपर, रसूल जो है अल्लाह का खास बंदा, दुनिया में रसूल से बढ़कर अल्लाह का कौन खास बंदा होता है? करोड़ आदमी है, उसमें एक रसूल होगा, तो उस रसूल से बढ़कर दुनिया में किसी का मकाम नहीं होगा। अल्लाह रसूलों को भी आजमाया था। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू। रसूलों के ज़माने में लोगों के ऊपर ऐसे जंग का ऐलान, जंग लोगों के साथ किया जाता था। रसूलों के साथ जंग का ऐलान लोग करते थे, नबियों के साथ। बासा का माना जंग के माने किए हैं मुफस्सिरीन। वज़्ज़र्रा, और उन लोगों को भूखा रखा जाता था, फाका रखा, उन लोगों को प्यासा रखा जाता था, मईशत उनकी तंग कर दी जाती थी। उन लोगों के खाने पीने की चीजें उन लोगों के ऊपर रसूल और उनके उम्मत के ऊपर, उनके कौम के ऊपर बंद कर दिए जाते थे। वज़ुल्ज़िलू, उन लोगों को दबा दिया जाता था, उन लोगों को तंग किया जाता था। रसूल कहते थे, यक़ूलु रसूल माहू मता नस्रुल्लाह, रसूल और उनके ऊपर जो ईमान लाए वो कहते थे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। रसूल अल्लाह की मदद के इंतजार करते थे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, सब्र करो, मेरे हुक्मों से हटो नहीं, मेरे रास्ते से हटो नहीं, मेरी मोहब्बत दिल से निकालो नहीं, दुनिया वालों के साथ झुको नहीं। मता नसरुल्लाह, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद करीब ही आने वाली है। उसके बाद मुश्किलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के साथ मदद फरमाएगा। बास जंगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम गए थे, फतेह नहीं मिली हर जंग में। बास जंगों में उन लोगों को शिकस्त भी मिली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सहाबा हार भी मिली है। मगर इस्लाम जो कमजोर था, इस्लाम के मानने वालों को कमजोर समझा जाता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को जो कमजोर समझा जाता था, मक्के में लोग इस्लाम कबूल करने के लिए डरते थे कि कहीं हमें मार ना दिया जाए, हम लोगों पे कहीं जुल्म ना किया जाए। मक्के से भगा दिया गया
मक्का छोड़कर प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर मदीना तशरीफ ले गए। मुट्ठी भर जमात, लाखों के इंसान, कुफार लाखों के तादाद में मक्का मदीना में, मुट्ठी भर मुस्लिम कौम, मुट्ठी भर मुस्लिम जमात, मुट्ठी भर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले इस्लाम नहीं छोड़े, कुफर के सामने सर न झुकाए, कुफर के सामने अपना माथा टेक नहीं किया, अपना माथा नहीं टेका, कुफर के सामने डरे नहीं, डट के खड़े रहे। अल्लाह तबारक व तआला इस मुट्ठी भर जमात को इतनी ताकत अता किया, वो मुट्ठी भर जमात मक्के को फतह करने के लिए गई। बड़े बड़े मुश्रिकीन जो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी जमात को जो मक्के से भगा दिए थे, वो लोग नबी के कदमों में आके बैठ गए, छुप गए। कुछ लोग लाइन में खड़े हो गए, माफ कर दीजिए। इस्लाम की खूबी यही है ना कि आज मुझे कोई मारे सताए तो मैं उसकी जिंदगी में उसका बदला लेने की कोशिश करूंगा। आप भी घर में कुछ झगड़े हो गए, खानदानी झगड़े, भाइयों के, दोस्तों के या किसी के पार्टनर के, कुछ भी, तो उसको जिंदगी भर याद रखेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की खूबी यही है कि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा की जमात को जो मक्के से भगा दिए थे, वही दुश्मन जो उनके ऊपर पत्थर मारे थे, वही दुश्मन जो उनके रास्ते में कांटे बिछाए थे, वही दुश्मन जो उन लोगों का रास्ता बंद किए थे, वही दुश्मन जो उन लोगों के ऊपर जुल्म करे थे, वही दुश्मन जो उनके जमात के लोगों को सूली पे चढ़ाए थे, वही दुश्मन जो उन लोगों के बदन के ऊपर इतने पत्थर मारे थे, सर से पांव तक नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खून से कपड़े लाल हो गए थे, वही दुश्मन जो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों को शहीद किए थे, वही दुश्मन जो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों को खून से भर दिए थे, वही दुश्मन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को गरम गरम रेत पे लिटा के उनके सीनों पे पत्थर रखा करते थे, वही दुश्मन जो बच्चों को, बड़ों को, औरतों को, बूढ़ों को कत्ल कर दिए थे, ऐसे दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइन में खड़े हैं कि उनसे माफी मांगे। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया। मक्का को फतह करे और ऐसे गुलामों को तैयार करे जो गुलाम सारे दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा लहराए, पौने दुनिया के ऊपर इस्लाम पहुंचाए। इब्ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला। अब जो मस्जिद अक्सा, जहां गुज़िश्ता जुम्मा भी तज़किरा किया, इससे पहले जुम्मे भी तज़किरा किया था, फलस्तीन में मस्जिद अक्सा को बगैर किसी जंग के उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फतह करने गए। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, अमल करने की जगह है, मेहनत करने की जगह है। जुल्म करो तो जुल्म का बदला आखिरत में जहन्नम में अल्लाह अता फरमाएंगे। नेकी करो, जालिम को जुल्म से बचाओ, मजलूम का साथ दो, अल्लाह इसका सवाब तुम्हें जन्नत में अता फरमाएंगे।